So let us now start with the topic parametric formic differentiation. इसमें क्या है, इसमें y और x एक दूसरे मतलब y जो है वो x पे डिपेंडेंट नहीं है, but y and x both are dependent on any third parameter, any third variable which is called the parameter. जैसे y जो है वो भी एक फंक्शन ऑफ t होगा, x भी एक फंक्शन ऑफ t होगा, तब हमें अगर dy by dx निकालना है, then my dy by dx would be what? dy upon dt upon dx upon dt. So my differentiation would be from this कि पहले हमने यहाँ से dy upon dt निकाल लेना है, that would be f dash t, dx upon dt निकालना है, that say it's g dash of t, then my dy by dx would be f dash of t upon g dash of t. Did you get it? करना क्या है, पहले y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एंड देन दोनों को डिवाइड कर देना है टू फाइंड dy by dx. Okay, so let us start with the question so that you have a more clearer picture. So find dy by dx if x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta. So सबसे पहले हम dx upon d theta निकालेंगे. Now the third variable here is theta. जो मेरा पैरामीटर है right now, that is theta. Okay, so dx by d theta मेरा हो गया a into minus sin theta, and my dy by d theta becomes what? a into cos theta. ठीक है, so मेरे पास ये दो वेरिएबल्स आ गए हैं. Now we are supposed to find dy by dx. How would we do that? हम इसको dy by d theta करेंगे. दोनों को हमने थीटा से डिवाइड कर दिया, थीटा से डिफरेंशिएट कर दिया एंड देन डिवाइड कर दिया. सो सच दैट डी थीटा कट जाएंगे एंड द आंसर वुड बी dy by dx. So please note कि हमें dy upon d theta ऊपर लिखना है. This is very frequent mistake कि हम ऊपर dx by d theta लिख देते हैं, क्योंकि वो फ्लो में पहले वो हो रखा होता है तो हम वही कर देते हैं. नो, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. dy by d theta पहले ऊपर लिखना है, देन नीचे माइनस a sin theta आएगा. तो माय आंसर इज माइनस cot theta, not tan theta, it's minus cot theta. a का डेरिवेटिव नहीं करेंगे? a का डेरिवेटिव नहीं करेंगे. a इज अ कांस्टेंट, जैसे कि 5 है, जैसे कि मान लो 5 है, ठीक है. सो जैसे अगर 5 cos थीटा होता तो आप 5 को जस्ट बाहर ले लेते और sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा कर देते, है ना. वैसे यहाँ पर a इज अ कांस्टेंट, ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, लाइक 2 और 5 और 8 कुछ भी. x मेरा ये है, तो अगेन अब मेरा जो थर्ड वेरिएबल है वो t है, तो अब हमें t के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा. सो दिस इज a इंटू 2t. ठीक है, dy by dt would be what? 2a into 1. ठीक है, ये a जो होते हैं कॉन्स्टेंट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जस्ट बाहर लिख रहे हैं. सो देन माई dy upon dx would be what? dy upon dt upon dx upon 1 by t. So this would be 2a upon a into 2t. So this would be 1 upon t. Is that okay? Okay, let's do another question. ये सारे examples कर रहे हैं अभी हम. We will be starting with exercise in a अभी recent. So x is equal to a theta plus sin theta. तो मेरा dx upon d theta, मेरा variable क्या है? थीटा है. ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा a is a constant, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा. देन dy upon d theta, a is a constant बाहर रखेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस cos थीटा का माइनस sin थीटा. So this is my a sin theta. ठीक है ना. तो हमारा dy upon dx क्या हो जाता है? dy upon d theta upon dx upon d theta. So this becomes a sin theta upon a1 plus cos theta. ठीक है ना. तो a यहाँ कैंसिल हुआ. This is my answer.
You can leave it till here, or if you remember the formulas, हम formula भी लगा सकते हैं. So what is sin theta? The sin theta is 2 sin theta. 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Theta by 2 upon, this is 2 cos square theta by 2 या sin square theta by 2? Cos. Cos square theta by 2. So ये cancel होगा, ये cancel होगा. This is tan theta by 2. ठीक है? This is my answer. So you could have left here as well as here, unless specified कि differentiation में answer क्या आया है, ये अगर ना बता रखा हो कि ये prove करो, तो आप कहीं तक भी differentiation छोड़ सकते हो, allowed होता है. But applying maximum formulas and giving a simpler result at the end is always preferable. Is that okay? So let us now start with the exercise. अभी तक हमने सारे examples किए हैं exercise 5.6 के. Now we are going to start the exercise. So just open your notebook and write it down. Answer 1. X. जिसको समझ आ गया है, try to attempt yourself. जिसको नहीं समझ आया, look it on the board. So dx upon dt is 2a into t square का differentiation 2t. ठीक है ना? dy upon dt would be what? A into 4t cube. So मेरा differentiation क्या हो जाएगा? dy upon dx is equal to dy upon dt upon dx upon dt. ठीक है ना? So this is minus a into 4t cube upon 4at. So मेरा 4a cancel हुआ, that would be minus t square. Is that okay? मैम ये थीटा और टी मतलब यही होते हैं या फिर कोई भी वेरिएबल आ सकता है? यही होते हैं, यूजुअली यही होता है. 98% ऑफ द केस में थीटा और टी ही मिलेंगे आपको. बहुत ही रेयर केस में कुछ और जैसे ओमेगा मिल गया, डब्ल्यू, ये भी हो सकता है, बट वेरी रेयर केस. ठीक है. Let us do question number 2 now. So my dx upon d theta would be what? Minus a sin theta. Minus a sin theta. Very good. And my dy upon d theta would be what? Minus b sin theta. B sin theta. Right. So dy upon dx would be what? Minus b by. So you, every time you have to write this also. कि आप कैसे लेके आए हो इसे. So minus b sin theta upon, this is minus of a sin theta. So this is cancelled. The answer is b upon a. Is that okay? Please note, differentiate करने के बाद ही divide करना है. पहले divide करके differentiate करना allowed नहीं होता है. Question number 3. If my x is this, y is this. So this is dx upon dt. So dx upon dt is my minus cos t. So dy upon dt is my minus sin 2t. minus sin 2t into 2. You know, chain rule लगेगा. So my dy upon dx would be what? Minus 2 sin 2t upon cos t. So you can leave the answer till here, or you can just write the formulas as well. So minus 2 sin 2t क्या होता है? 2 sin t cos t. ठीक है ना? So upon cos t will give me minus 4 sin t as my answer. Is that okay? Let us now start question number 4. Lakshita, can you tell me dx upon dt here? And dx upon dt equals to पानी दे दो पानी दो equals Mix to 4t. थोड़े से
थोड़े से इतने से रिया म्यूट। ओके, dx upon dt लक्षिता बोलो। dx upon dt equals to 4 and dy upon dt equals to minus 4. -4. -4। एक मिनट, -4/t². -4 upon t square. So that would be -4 upon t square। ठीक है, so ये मेरा हो गया। अब मैं क्या करूं, मुझे निकालना था dy upon dx। so मैं क्या करूं बताओ। -4 upon t square divided by 4. Very good. So dy upon dt upon dx upon dt, that would be -4 upon t square divided by 4. So this gives me the answer -1 upon t square। हमें एक बार बताना -4/t² कैसा है। -4 अपॉन टी स्क्वायर कैसे आया, तो हमारे पास 1 अपॉन टी है। देखो 4 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है 1 अपॉन टी को। तो 1 अपॉन टी को हम ट्रीट करते हैं एज टी रेज़ टू पावर -1। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n अच्छा हाँ, गॉड मैम, थैंक यू। n-1। तो -4 t -2, फिर -2 को हम नीचे ले जाते हैं। ठीक है, और यू हैव टू लर्न कि आपके 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है -1 अपॉन एक्स पर होता है। कुछ कुछ चीजें मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, लर्न कर लो। दिस इज वेरी एसेंशियल। ठीक है, क्योंकि वो थ्रू आउट यूज होता है, तो बार बार निकालने से अच्छा आप एक बार लर्न कर लो। ठीक है ना, वेरी गुड लक्षिता। ओके साची, कैन यू टेल मी आंसर 5? Yes, ma'am. Minus sine theta Very good. minus 2 sine 2 theta Very nice. So this is minus sine theta plus 2. plus 2 sine 2 theta. Okay, and dy upon d theta is? Cos theta minus 2 cos 2 theta. Very good. So this becomes, अच्छा ये तो करने पड़ता है। And what will be my dy upon dx? Cos theta minus 2 cos 2 theta upon minus theta plus 2 sine 2 theta. Very good. तुषार, यस मैम। जस्ट टेल मी कैसे करेंगे। x आपके पास है, तो मेरा dx upon d theta बोलो क्या होगा? a 1 minus cos theta, Very good. And what will be my dy upon d theta? a Hmm. minus sin theta, Very good. 0 minus sine theta. So my dy upon dx would be what? a upon 1 minus cos theta, देखो ध्यान रखो, dy upon d theta ऊपर आना चाहिए। So this is basically, तभी मैं बोलती हूँ बार बार ना ये चीज जरूर लिखना, क्योंकि इस चीज लिखने से ना गलती के चांसेस कम होते हैं। So dy upon d theta यहाँ से उठाना है, minus a sin theta, a minus sin theta upon a। a ठीक है, इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो। Can you tell me the formula for this? साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो यहाँ से 2 कटा, साइन साइन कटा, सो माय आंसर वुड बी माइनस ऑफ कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। सो व्हाट इज दिस, प्रज्वल बोलो, व्हाट इज? minus cos theta. वेरी नाइस, दिस इज माय आंसर। Question number 7, I'll do at the end because it's very lengthy question. अभी हम सारे बाकी करेंगे। Question number 8, Tushar, are you there? Sana?
रितिका, मैं ही कर दूं। रिया, a into minus sin t a into minus sin t प्लस log by 2 का बताओ, ट्राई करो। सो 1 upon tan वेरी गुड, महक बोलो। 3 upon 2 इनटू फिर चेन रूल लगेगी, और tan t by 2 का करो। sec square t by 2 t by 2 अब t by 2 का करो। सो किया क्या हमने, सबसे पहले log का किया डिफरेंशिएशन, फिर हमने tan का किया, फिर t by 2 का किया। तो log के डिफरेंशिएशन में जो अंदर वाला है वो नीचे आ गया, ठीक है, इनटू फिर इसका sec स्क्वायर हो गया, फिर इनटू t by 2 का 1/2 हो गया। Is this differentiation clear? Okay. So now what is dy upon dt? Say it. That will be just 1a cos t. एक और So let us solve this. ये क्या है, a minus sin t plus 1/, ये क्या होगा, sin t by 2 upon cos t by 2, ऊपर ले जाओ, ठीक है, into this is 1/, cos square t by 2 into 1/2, ठीक है ना। सो इसमें से एक cos तो कैंसिल हो गया, और दूसरा क्या बन गया, माइनस साइन टी प्लस 1/, दिस इज 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। ये समझ आ रहा है किसका फॉर्मूला यूज करेंगे अब हम, व्हाट इज दिस, दिस इज साइन टी का फॉर्मूला। साइन टी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या हो गया, साइन टी। सो दिस बिकम्स a minus sin t plus 1/, sin t, right? So this is a minus sin square t plus 1. I am taking the LCM. So basically what is this? What is this? This is 1 minus sin square t, ठीक है ना, which is equal to cos square t. So my answer is a cos square t upon sin t. ये ठीक है, सबको क्लियर है ये कहाँ से आया, राइट। सो व्हाट वी आर नाउ सपोज्ड टू फाइंड इज dy upon dx, which will be dy upon dt upon dx upon dt, ठीक है ना। सो दैट वुड बी dy upon dt मेरा क्या था, वो था मेरा a cos t, दिस इज a cos t, और ये क्या था, a cos square t upon sin t। So I am taking sin t ऊपर, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, tan t tan t is my answer। किसी को कोई डाउट इसमें, नो मैम करना क्या है, बार बार एक वेरिएबल दे रखा होगा, थर्ड वेरिएबल दे रखा होगा जिसपे x और y डिपेंडेंट होंगे, दोनों को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना और फिर डिवाइड कर देना, दैट्स इट। ठीक है। Question number 9, x is equal to a sec theta, y is equal to b tan theta. I hope you have learned all the formulas. Formulas जिसको याद नहीं होंगे वो फिर मुश्किल में पड़ता जाएगा पूरी कैलकुलस में, बेटर अभी याद कर लो formulas। dx upon d theta मेरा क्या हो जाएगा, a sec theta tan theta tan theta very nice, and what will be my dy upon d theta, b sec square theta b sec square, ठीक है। तो dy upon dx मेरा क्या हो जाएगा, b sec square theta upon a sec theta tan theta। very nice, Riya. So this is b sec square theta upon a sec theta tan theta, ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हुआ। सो दिस विल बी b upon a, इसको 1/, cos थीटा लिख सकते हैं, इसको 1/, sin थीटा upon cos थीटा, तो ये कैंसिल हुआ। सो माय आंसर इज b upon a
sine. You can leave till here, or you can write d by a for sec theta. Number 10 is x is equal to this. तो a बताओ dx upon d theta क्या होगा? a into minus sin theta plus cos theta. So now here will be the product rule. Product rule क्यों? क्योंकि दो functions है, एक theta एक sin theta, ठीक है? तो पहले theta का differentiation into sin theta plus फिर theta into sin theta का differentiation, ठीक है? ये मेरा product rule से होगा question. Then dy upon d theta. This is the most important question of this exercise. Question number 10 and 7 are the most important questions. So dy by d theta are a. This would be Cos theta. This again theta cos theta पे हमारा calculate product rule है. So that would be theta का differentiation into cos theta plus theta into cos theta का differentiation. ठीक है ना? ठीक है ना? Now let us do differentiation of dx. Okay. Right. So dx by d theta is equal to a. This is minus sin theta plus theta Plus sin theta. हो जाएगा. That would be just sin theta plus this would be theta into Cos theta. theta. Minus नहीं cos theta. So this would be dy upon d theta is equal to a cos theta minus, this is again theta का differentiation one. This would give me cos theta plus minus sin theta. ठीक है, तो दो बार है माइनस, एक बार इसका माइनस साइन थीटा और एक है माइनस, तो आई एम जस्ट राइटिंग प्लस डायरेक्टली. सो दिस वुड बी, यहाँ से ये कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा. So my dx upon d theta would be what? A theta cos theta. dy upon d theta would be what? A theta sin theta. Then my dy upon dx would be what? dy upon d theta upon dx upon d theta. So if you are comfortable, पूरा dx by d theta पहले निकाल लो और dy by d theta पूरा पहले बाद में निकाल लो. I go parallelly, I don't know why, but आप अलग अलग भी चल सकते हो. आप पहले पूरा dx by d theta निकालो, फिर dy by d theta निकालो. Okay, so this is a theta sin theta upon a theta cos theta, right? तो ये cancel होगा. The answer is tan theta. Is that okay? Okay, so my exercise is all complete. Now I am coming to question number 11 is there. Showing. So question number 11, I am doing this. See, there is one particular way of doing this question which makes the question very simple. But if you want, आप वही regular process से भी जा सकते हो. dx by d theta निकाला, dy by d theta निकाला, divide कर दिया, तो भी ठीक है. I prefer this क्योंकि इससे ना थोड़ा मेरा आंसर सिंपल हो रहा है. So just note the procedure. What I am doing is I am multiplying x into y. So x into y is what? Under root of a sin inverse t into under root of a cos inverse t. ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई किया. So this is under root of a sin inverse t into a cos inverse t. हमने रूट कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों रूट थे. Then under root of, क्योंकि मेरे बेसिस सेम है, मेरी पावर्स एड अप हो जाएंगे. This is sin inverse t plus cos inverse t. ठीक है. So this becomes under root of, what is sin inverse x plus cos inverse x? Do you remember? Inverse pi by pi by 2. Very pi nice. by 2. Nice. So ये मेरा a raised to power pi by 2 हो गया. ठीक है ना? Now this a raised to power pi by 4 ले रहे. जो भी है इट्स अ कांस्टेंट ना. तो अगर मैं अब इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगी, x into y
इज इक्वल टू द कांस्टेंट से c, या यही लिख लो जो भी आपकी मर्जी है. देन इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा. इट विल बी x इंटू वाई डैश प्लस x डैश इंटू वाई इज इक्वल टू 0. जो भी है मेरा ये कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन अब 0 हो जाएगा क्योंकि वो क्या है, एक कांस्टेंट है. सो दिस इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x का डिफरेंशिएशन इज y इंटू 1, सॉरी, x का डिफरेंशिएशन इज 1. Then dy by dx becomes minus y upon x. This was what we were supposed to do. Hence, एक बार इससे पहले स्टेप दिखाना. this is my question. क्या किया हमने, क्या बोला था, x मेरे पास ये था, y मेरे पास ये था. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने x इंटू वाई कर दिया, सीधा x इंटू वाई कर दिया. ये प्रोसीजरल वे है, वो याद रख लेना. तो दिस इंटू दिस किया तो मेरे पास a इंटू ए रह गया और ऊपर जो है वो साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t बन गया ऐसे, क्योंकि जब बेसिस सेम होती है पावर्स ऐड हो जाती हैं. सो दिस गिव्स मी ऊपर पाई बाय 2 एंड दिस इज x y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. अब ये जो है ये मेरा एक कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे सच दैट इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा. ठीक है ना. तो अब इसका डिफरेंशिएशन में हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है इक्वल टू 0 और यहाँ से dy by dx निकाल दिया इक्वल्स टू माइनस y upon x. We are supposed to find dx by dt of this. ठीक है, प्लीज नोट. इसमें अब हमारा लगेगा क्वोशिएंट रूल. ठीक है, तो क्वोशिएंट रूल के लिए दिस वुड बी dx upon dt इज इक्वल टू, पहले नीचे रहेगा पूरा रूट cos 2t का स्क्वायर. ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, रूट cos 2t एज इट इज इनटू साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन माइनस व्हाट इज दिस, साइन क्यूब t एज इट इज इनटू रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन. ये स्टेप क्लियर है. मैंने क्वोशिएंट रूल लिखा, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो लेट अस नाउ डू द डिफरेंशिएशन. दिस इज रूट cos 2t, साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? 3 sin square t. 3 sin square t, वेरी गुड, इनटू cos t. चेन रूल लगेगा ना, एक बार 3 sin square t इनटू cos t माइनस फिर sin क्यूब t का sin क्यूब t एज इट इज आएगा और रूट cos 2t का. सो रूट cos 2t को हम ट्रीट कर रहे हैं. रूट cos 2t करते हुए वी हैव 3 फंक्शंस नाउ. एक तो रूट को डिफरेंशिएट करना है, फिर cos को करना है, फिर 2t को करना है. ठीक है, तो पहले हम रूट को करते हैं. दिस इज 1/2 रूट. ठीक है, सो दिस वुड बी 1/2 रूट, जो नीचे है वो एज इट इज हो गया. ठीक है, फिर अब cos को करेंगे, दैट वुड बी minus sin 2t. ठीक है, फिर into 2. करेंगे तो 2. सो यहाँ से 2 कैंसिल हुआ. दिस इज माय आंसर एंड दिस आई एम राइटिंग इट एज -2 sin t cos t इनटू अपॉन में रूट cos 2t. ये डिफरेंशिएशन समझ आ गया सबको? So right now I am writing -2 sin t cos t upon root of cos 2t. ठीक है, this is my dx upon dt upon root cos 2t का स्क्वायर. तो रूट और स्क्वायर हट जाएंगे तो सिंपल cos 2t आ गया. ठीक है ना. Okay, so now I am taking the LCM as root cos 2t. So this would be my root cos 2t नीचे. ठीक है, ये हो जाएगा रूट cos 2t इंटू रूट cos 2t is cos 2t इंटू 3 sin square t cos t minus this is minus plus 2 sin 4t
and cos t. ठीक है, अपॉन दिस इज माय cos 2t. इसमें किसी को डाउट? हमने सिर्फ रूट cos 2t को डिनोमिनेटर लिया, दैट्स इट. ठीक है, मतलब एलसीएम लिया. So since ये दोनों डिनोमिनेटर में है, so I am compiling them up. That would be cos 2t का whole 3/2. सीधा लिख दूं या फिर okay, I'll write this as this. ये ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर ये रह गया. अब इनमें से कॉमन लेते हैं. So I have sin square t कॉमन, cos t कॉमन, तो मेरा ये बचा 3 cos 2t प्लस this is 2, this is sin square t or what? ये ठीक है, ठीक है ना? ठीक. So this becomes this. We have sin square t cos. ये मेरा बन गया dx upon dt. This is my dx upon dt. ठीक है, अब I can write this as, okay, so first let us now start with dy upon dt, फिर जितना होगा उसको सॉल्व कर लेंगे. So y मेरा e upon root cos 2t. ठीक है ना? So this gives me what? dy upon dt is equal to, पहले अगेन डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर पहले डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस cos क्यूब t एज इट इज और रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन. ठीक है, यहाँ पे कोई गलती हो तो प्लीज कैच मी. जब इतने लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है. तो दिस इज cos 2t into cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन वुड बी 3 cos स्क्वायर t into माइनस sin. ये ठीक है ना? ठीक, माइनस cos क्यूब t into, अब इस रूट cos 2t का हमने ऊपर भी किया था, so I am just directly picking that up from here. That is minus 2 sin t cos t. So this is minus 2 sin t cos t upon root cos 2t. So मेरा डिफरेंशिएशन हुआ ये. हम शुरू से एक बार लास्ट तक दिखाओ. अभी इकट्ठा दिखाऊंगी, पहले हो जाए. ठीक है, अभी तो बहुत रहता है. ये आ गया. अब मैं रूट cos 2t को एलसीएम ले रही हूँ. ठीक है, तो नीचे मेरा cos 2t ऑलरेडी था, तो रूट cos 2t आई एम टेकिंग एलसीएम. तो मेरा ऊपर क्या आएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा एंड दिस वुड बी 3 cos square t minus sin t minus this would be minus minus plus this is 2 sin t cos 4t. ठीक है ना? Now we are going to take common part, that is cos square t and sin t outside, and this becomes minus 3 cos 2t plus 2 cos square t. ठीक है ना? अपॉन दिस इज cos 2t into root cos 2t. ये हमने dx by dt भी वहीं तक निकाला था और dy by dt भी यहीं तक निकाल देते हैं. राइट? So my dy upon dx would be what? This पूरा upon जो dx upon dt था. So ये मेरा पूरा क्या है? cos square t sin t. Okay, this is minus 3 cos 2t plus 2 cos square t
upon cos 2t root cos 2t. Okay, so I'm now popping down dx upon dt. वो था मेरा sin square t cos t और अंदर कुछ था upon cos 2t root cos 2t. So मेरा ये और ये तो कैंसिल हो जाता है and dx by dt was 3 cos 2t plus 2 sin square t. ये था, ठीक है. अब इसमें से एक तो ये कैंसिल हो गया आपस में एंड एक ये कैंसिल हो गया. So मेरे पास क्या बचा ऊपर नीचे cos t upon sin t and this would be minus 3 cos 2t plus 2 cos square t. अभी तक मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, बस अभी हम सीधा सीधा सिर्फ डिफरेंशिएट करते गए थे. Now I am going to apply formula. So my formula is मेरा cos 2t क्या होता है? cos 2t क्या होता है? 2 cos square t minus 1 होता है, ठीक है. और cos 2t क्या होता है? 1 minus 2 sin square t होता है, ठीक है. तो आई एम अप्लाइंग बोथ. आई एम अप्लाइंग दिस ऊपर एंड दिस नीचे सो दैट कि मेरा नीचे sin square t के साथ हैंडल हो जाए और ऊपर जो है मेरा cos square t से हैंडल हो जाए. सो दिस बिकम्स cos t upon sin t. दिस इज माइनस. मम्मी वही चल रहा है ना उसको अभी. cot t लिख दो ना. तभी मैंने ना ये क्वेश्चन लास्ट में रखा है, ठीक है. सो 3 this is 1 minus 2 sin square t plus 2 cos square t. This is 2 sin square t. Okay, so this becomes cos t upon sin t. This is minus 6 cos square t plus 3 plus 2 cos square t upon this is 3 minus 6 sin square t plus 2 sin square t. मेरी राइटिंग ठीक आ रही है? मेरा पेन बहुत लैग कर रहा है मेरे अकॉर्डिंग. This is cos t upon sin t. This is minus 4 cos square t plus 3. This is 3 minus 4 sin square t. Okay. This is minus 4 cos cube t plus 3 cos t upon this is 3 sin t minus 4 sin cube t. ना आपको कुछ ये फेमिलियर फॉर्मूलाज लग रहे हैं. सो माय sin 3t is 3 sin t minus 4 sin cube t. This is my formula for sin 3t and my cos 3t is 4 cos cube t minus 3 cos t. This is my formula. So अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे अगर तो this is my minus cos 3t and this is sin 3t. So my answer is minus cot 3t. Finally, we have reached our destination. मैम आज के लिए बस. आज के लिए हाँ बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, इसलिए मैंने ना लास्ट में करवाया ये क्वेश्चन क्योंकि तो बस करा दिया. मम्मी वही वाला है ना, मतलब भैया I'm just repeating, please wait. Battery dying हो रही है. Okay, so let us redo the question. क्या था हमारे पास?
हमारे पास था x इज इक्वल टू ये और y इज इक्वल टू ये, हमने डिफरेंशिएट करना है. सो आई हैव अप्लाइड द क्वोशिएंट रूल हियर, जिसमें नीचे हो गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर और ऊपर हुआ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस कर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. ठीक है ना. सो यहाँ से वी हैव साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन एज 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और cos 2t का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ से किया था, दैट इज माइनस 2 sin t cos t अपॉन रूट cos 2t. ठीक है. उसके बाद मैंने रूट cos 2t को एलसीएम लिया, इसको मैंने एलसीएम लिया. तो एलसीएम लेने के बाद ये जो है दिस इनटू दिस वुड बी cos 2t, और ये हो जाएगा ये सेम और ये सेम. ठीक है ना. फिर हमने एलसीएम ले लिया, ये दोनों सेम है तो हम डिनोमिनेटर है तो हमने इनको इकट्ठा लिख दिया. इन दोनों में से हमने साइन स्क्वायर टी cos t कॉमन लिया, तो हमारे इसमें से ये आया कॉमन साइन स्क्वायर टी और cos t, और इसमें से एक साइन स्क्वायर टी आया और एक cos t आया, तो बचा यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर टी. ठीक है. तो यहाँ से हमने ले लिया बाहर, ये एज इट इज आ गया मेरा dx अपॉन dt. सेम वी डिड इट विद dy बाय dt, तो दैट वुड बी वही न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया हमने. ठीक है ना. फिर उसके बाद cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन होता है 3 cos स्क्वायर t माइनस साइन t, और इसका डिफरेंशिएशन हमने ऊपर से ही कॉपी कर लिया. फिर हमने इन दोनों में कॉमन चीजें थी cos स्क्वायर t और साइन t, वो कॉमन लेके बाहर ले लिया. तो हमारे पास अंदर क्या बचा, ये चीज चली गई, यहाँ से ये चीज चली गई. ठीक है ना. तो हमारे पास ये बच गया, cos स्क्वायर t बच गया यहाँ पे. सो दिस वाज दिस. फिर हमने dy अपॉन dx लिखा, दैट वुड बी dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt. तो हमने यहाँ पे कैंसिल किया, ये कट गया, ये कट गया, तो नीचे बच गया बस ये बच गया cos t अपॉन sin t, और ये पूरा बच गया. नाउ वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला. अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज चाहिए. अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन कर रहे थे और प्लस माइनस कर रहे थे. अब नाउ वी नीड टू फॉर्मूलाज, दीज आर दिस. सो वी यूज्ड इट हियर, ऊपर cos स्क्वायर वाला नीचे sin स्क्वायर वाला, सो दैट एक कन्वीनियंट हमारे पास आंसर आ जाए. तो हमने ये पूरा खोल दिया. ठीक है. दैट वुड बी दिस. उसके बाद जब हम cos t को अंदर लेके आए, sin t को अंदर लेके आए, तो हमारे पास ये बन गया. ये अगेन हमें दो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए टू अप्लाई द टू फाइंड द फाइनल आंसर. सो दिस इज माय फाइनल आंसर.